Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Global Web Computer. This is your sixth class of your Power BI series. In this video, we will learn about some very useful visuals that help you build a real dashboard like KPI, card, multi-row card, table, matrix, slicer, button slicer, and new card. So first, KPI. KPI is key performance indicators. KPI is used to compare actual value with a target. For example, if your sales target is 1 lakh and your actual sales is 90,000, then KPI visuals show how close or far you are from the goal. It also shows arrow and colors to indicate good or bad performance. Second, guide and multi-row guide. Guide visuals show one big number like total sales, total profit, or number of orders. It's perfect for highlighting important values. And multi-row guide shows multiple value together in one row. For example, total order, total customers, and total return side by side. Third, slicer. Slicer like a filter of your report. You can filter your data by selecting year, state, product categories. For example, if you want to see data only for Madhya Pradesh or only for 2023, you can simply click the slicer. There are different types of slicer: list slicer, drop-down slicer, data range slicer, between slicer value. It makes your report more attractive. Fourth, table and matrix. Table visuals looks like Excel. It shows row and columns with details number. Matrix visuals is like a pivot table. So it shows value with row and column. For example, product categories in row and month in column and total sales in value. Matrix is great for comparing data across different dimensions. Slicer. Button slicer just like a navigator button. A button slicer is a smart and stylish way to filter data using buttons instead of a traditional slicer. How it works? You can create button like sales, profit, and orders. When a user click one button, the visuals on the page change based on the selection. Next, new card visual. Power BI has introduced a new version of the card visual with more customized and smart formatting. What's new in it? Show value and label with more style. Add conditional formatting like color change when value is low to high. You can now show icon, sparkline, and dynamic background. Let's begin. Start first. So guide visual. First click on this visuals. सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, इसको फुल साइज में लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है डेटा को फीड करना। तो डेटा को फीड करते हैं, सो आप यहाँ पे विजुअल्स पे क्लिक करिए। तो फर्स्ट आपको इसमें सिर्फ सिंगल फील्ड मिलता है। सिंगल फील्ड के अंदर आपको मल्टीपल डेटा को रखना होता है। आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे लाइक मुझे यहाँ पर दिखाना है सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पर टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा। तो टाइम लगेगा। सेल्स को आप लोग देख सकते हैं 2.30 मिलियन टोटल सेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं। आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे, थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक एरो की मिलेगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फील्ड एंड एक समराइजेशन। तो उस फील्ड में तो आपको सम ऑफ सेल्स ही रखने देना है। यहाँ पर आप चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो। एक नेम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से सम ऑफ उठाकर हम सिर्फ सेल्स अकेला रख देंगे। तो आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे समराइजेशन पे जाना है एंड यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे सम निकालना चाहो तो सम सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज निकालना हो आपको तो आप सिंपल एवरेज पे क्लिक करिए। एवरेज के बाद कई सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट, स्टैंडर्ड डिवीजन, डाइवर्जन, ठीक है, वेरिएंस, मीडियन वगैरह आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहो तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करें इसकी फॉर्मेटिंग की, तो जैसे हम फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है कॉल आउट वैल्यू एंड सेकंड मिलता है कैटेगरी लेवल। कॉल आउट वैल्यू मतलब 2.30 एंड कैटेगरी लेवल मतलब सेल्स। यहाँ पर अगर मुझे 2.30 पे कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कई तरीके की फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। आप चाहो तो इसको यहाँ से बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। साइज वगैरह आपको यहाँ से आपके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले यूनिट का। अब जैसे आप लोग डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करते हो तो डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर देते हो तो नन का मतलब होता है कि जो भी आपके नंबर है यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि
जो 22 मिलियन था, 2.30 मिलियन, वो किस टाइप से दिखाई दिख रहा है यहाँ पे कि 22,97,200, मतलब 22,97,200। अब यहाँ पे चाहो तो इसको फिर से मिलियन में कर सकते हो, थाउजेंड में दिखा सकते हो। थाउजेंड में आप दिखाओगे तो थाउजेंड में आ जाएगा 2,297,000। अब यहाँ पे बड़ा डेटा जब भी रहता है तो पावर भी ऑटोमेटिक डिडक्ट करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलियन में ही रखना है। एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप थाउजेंड में लेना हो तो। नेक्स्ट आपको लास्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कैटेगरी लेवल। कैटेगरी लेवल मतलब जो सेल्स वगैरह लिखा हुआ है तो आप लोग कलर चेंज कर सकते हो एंड कोई भी फॉर्मेटिंग इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इस टाइप से इसकी मैंने फॉर्मेटिंग की। तो ये हमारा फर्स्ट काइड था, फर्स्ट विजुअल। सेकंड हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि सेकंड मिल जाता है मेरे लिए मल्टी रो काइड। तो काइड एंड मल्टी रो काइड दोनों मोस्टली सेम होते हैं, बट मल्टी रो काइड में मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल्स रो मिल जाती है मेरे पास डेटा फीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फील्ड के अंदर जाता हूँ एंड फील्ड में मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कैटेगरी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग देखोगे जितनी भी कैटेगरी मेरे डेटा के अंदर मिलेंगी वो सभी कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पे लिखी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे एड डेटा पे क्लिक करके सेल्स वगैरह भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे सेल्स भी देख सकते हो। इस टाइप से आपको एक फर्नीचर का टोटल सेल देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफिस सप्लायर्स का एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी का टोटल सेल्स देखने को मिल जाएगा। और भी अगर आप डेटा ऐड करना चाहो तो यहाँ पे और भी डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों को क्वांटिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसके भी अगर हम लोग फॉर्मेटिंग की बात करें अगर, तो फॉर्मेटिंग पे जब हम जाते हैं तो आपको मिलता है कॉल आउट वैल्यू एंड कैटेगरी लेवल। थर्ड ऑप्शन काइट का यूज कर रहे हैं इसलिए एक और ऑप्शन ऐड हो गया है काइट। काइट का हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्नीचर ऑफिस सप्लायर्स एंड टेक्नोलॉजी, तो काइट में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसका कलर चेंज करना है, इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो आप लोग इजिली यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज किया है, इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ मैं। बोल्ड करने के बाद अब इसका जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टाइल में आप लोगों को चार ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है बॉर्डर पोजीशन का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे टॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टॉप पे आप देखोगे बॉर्डर फिट हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करोगे तो बॉटम पे भी बॉर्डर लग जाएगा, लेफ्ट में एंड राइट में। आप देखोगे मैंने चारों तरफ इसका बॉर्डर लगा दिया है, एक तरीके से बटन जैसा बन गया है, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी यहाँ से छोटी कर देता हूँ, यहाँ से इसकी साइज जो है बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इन वगैरह करके आप लोग इसलिए इसकी हाइट एंड साइज को हमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आउटर लाइन का जो कलर है ना अभी आप लोगों को कम दिख रहा होगा, सो आप लोग उसको डार्क ब्लैक भी कर सकते हो। देखिए इस टाइप से आप लोगों को बटन बन जाएंगे, थोड़े स्टाइलिश लगेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे आउटलाइन वेट मिल रहा है तो टू मतलब इसकी ब्रीथ वगैरह बढ़ाना हो तो आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आप लोगों को व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरा कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग कोई और भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी जो पैडिंग वगैरह होती है आप लोग वो भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पेस वगैरह होता है, पैडिंग के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा उस चीज को। एसेंट बार मतलब एक तरीके से लाइन आती है तो आप लोग देख सकते हो हल्की सी जो लाइन आ रही है साइड में, जूम करके बताता हूँ आप लोगों को। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी इसको बोला जाता है एसेंट बार, ठीक है। इसको हटाना है, इसको रखना है आपकी चॉइस से। आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। ये हमारी कुछ काइट की फॉर्मेटिंग थी वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों के सामने एक विजुअल्स निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है केपीआई। तो केपीआई हम लोग देखें तो केपीआई होता क्या है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे ट्रैक करने के लिए मैं डिटेल बता चुका हूँ आप लोगों के लिए, कहाँ पर यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो केपीआई वगैरह अगर मैं यहाँ पे ट्रैक करना चाहूँ पिछले ईयर्स की सेल्स और इस ईयर्स की सेल्स में क्या डिफरेंस देखने को मिला है, सिंपल सी बात है। अगर इंक्रीजिंग यहाँ से आपको चेक करना है तो आप लोग इजिली यहाँ पे केपीआई का यूज कर सकते हैं। केपीआई में आप लोगों को तीन फील्ड देखने को मिलेगी, वैल्यूज, ट्रेंड एक्सेस एंड टारगेट। तो आप लोगों को सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, वैल्यूज। तो वैल्यूज के अंदर आप लोगों को रखना है सेल्स। आपको यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है ट्रेंड एक्सेस। तो ट्रेंड एक्सेस पे किसके बेस पे आप ट्रेंड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वगैरह दिखाना है। सो मैं यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कैटेगरी दिखा सकते हैं, यहाँ से सिटी वगैरह दिखा सकते हैं। अगर सिटी के बेस पे करना चाहे तो सिटी, कंट्री के बेस पे करना चाहो तो आप लोग यहाँ से कंट्री वगैरह भी दिखा सकते हो, ठीक है। पर डिडक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी है मेरे पास, कैटेगरी सब कैटेगरीज के बेस पे दिखाना चाहो तो यहाँ पे कैटेगरीज भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट ट्रेंड किसके बेस पे करना है, या फिर आप लोग देख सकते हैं टारगेट आपको क्या देना है। लाइक कंपनी ने अगर आपको कोई टारगेट दिया है एंड आपने उसको कितना अचीव किया है तो वो भी आप लोग दिखा सकते हो। टारगेट में आपको वो वैल्यू रखना है जो कंपनी ने टारगेट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को वैल्यूज में रख देना है जो भी आपने अभी तक अचीवमेंट किया हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब मेरे पास ऐसा कोई भी डेटा तो नहीं है फिलहाल में कि जिसको मैं टारगेट में रख सकूं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल में रख देता हूँ प्रॉफिट। देखो कि प्रॉफिट काफी ज्यादा हो चुका है, 1200 मतलब 1267% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब इतना ज्यादा इसमें इंक्रीज या ज्यादा उछाल देखने को मिला है हमारे बिजनेस में, तो यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2021, 2022 या 2024-25 का अगर आप डेटा कंपेयर करोगे
फिर आपको कमी देखने को मिलेगा, मतलब जो भी आपका एच प्रॉफिट हुआ है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कितना क्या आपने गोल अचीव किया है, कितना आपने अचीव नहीं किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजिली। एंड केपीआई की अगर हम लोग फॉर्मेटिंग की बात करें, सो फॉर्मेटिंग में आप लोगों को नॉर्मली ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कॉल आउट वैल्यू मिल जाएगा। आइकॉन वगैरह अगर आपको हाइड करना है, सो आइकॉन मीन्स जो आपको एक राइट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो इसको आप हाइड भी कर सकते हो एंड शो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है, इसकी साइज आप बढ़ाना चाहो तो आप इजिली यहाँ से इसकी साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे 21 साइज कर दी, तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आप लोगों को ट्रेंड एक्सेस दिखाना है, ट्रेंड एक्सेस हमने जो दिखाया था तो आप उसको ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट लेवर हमने दिखाया था तो आप इसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हो इजिली। एंड डेट आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल टेबल का एक फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑफ ही रखिए। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, एक और हम लोग विजुअल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा विजुअल्स रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है स्लाइजर। स्लाइजर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, स्लाइजर बेसिकली फिल्टर का काम करता है। ठीक है, एक तरीके से फिल्टर लगाना होता है डेटा पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे दो डेटा दिखाने वाला हूँ एक साथ में। तो यहाँ पर स्लाइजर में यहाँ पे यूज करता हूँ, स्लाइजर के अंदर फीड रख देता हूँ, किसके बेस पे मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट की, तो आप लोगों को सब कैटेगरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कई सारी सब कैटेगरीज आ चुकी है। सब कैटेगरीज के साथ साथ या फिर आप चाहो तो आप डेट पर भी लगा सकते हो। एक यहाँ पे अगर मुझे देखना है ऑर्डर डेट पे, सो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी आपकी ऑर्डर डेट है वो यहाँ पे सभी डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक जो लेफ्ट साइड का एरो है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर डेट में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई डेट हेरारकी चाहिए या आपको नॉर्मल डेट रखना है। डेट हेरारकी पे क्लिक कर दोगे तो आपको डायरेक्ट ईयर वाइज यहाँ पे सेल्स देखने के लिए मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं कई तरीके की सेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या दिखाना है, जैसे मान लो मैं एक और कॉलम में अगर यूज करके बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम के अंदर कोई भी मैं डेटा फीड कर देता हूँ। एक एक्स एक्सेस में मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज बता रहा हूँ। एंड बाय एक्सेस में मैं यहाँ पे कुछ सेल्स रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास विजुअल बन के आ गया है कंप्लीट। बट मुझे इस पे कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है, सो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ 2014 का डेटा। यहाँ पर आप देखना चाहे 2015 का डेटा, आप यहाँ पे देखना चाहे 16 का डेटा, आप देखना चाहो 17 का डेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक तरीके से फिल्टर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को इसके कुछ टूल्स वगैरह अगर देखना है कि यूज किस तरीके से कर सकते हो आप लोग स्लाइजर, क्योंकि स्लाइजर की थोड़ी फॉर्मेटिंग यूनिक होती है, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बताता हूँ आप लोगों को फॉर्मेटिंग किस टाइप से करना है। आप लोगों को चलना है फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद आप लोगों को पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है साइज एंड स्टाइल। तो यहाँ से तो आप लोग डायरेक्ट हाइट एंड साइज यहाँ पे ब्रीथ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, इन सबके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। बैकग्राउंड कलर आप लोगों को लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर आप लोग यहाँ से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से अप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, इस कलर को रख देता हूँ। एंड विजुअल्स का बॉर्डर वगैरह आप लगाना चाहो तो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। बॉर्डर को थोड़ा राउंड करना चाहो तो आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करना चाहो बॉर्डर का तो इसलिए आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो बॉर्डर का। शेडो वगैरह दिखाना चाहो तो आप शेडो को जैसे ही ऑन करोगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे शेडो देखने के लिए मिलेगा। शेडो का कलर पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कोई सा अगर आपको अदर कलर रखना है तो आप लोग कलर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को जो इंपोर्टेंट चीज है वो है टाइटल है। ठीक है, टाइटल अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया है, तो मैं टाइटल को ऑन करूंगा तो आप देखोगे एड विजुअल टाइटल, तो आप लोग इजिली यहाँ से दिखा सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ फिल्टर बाय ईयर। मैंने यहाँ पे फिर जो टाइटल होता है वो यहाँ पे शेड कर दिया है। आप लोग देखो कि कुछ टाइप से दिखाएगा फिल्टर बाय ईयर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिस पे भी क्लिक करना चाहो उस पर क्लिक कर सकते हो, तो उसका यहाँ पे सेल्स वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोगों का जरूर पैसा विजुअल है तभी। नेक्स्ट हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्लाइजर कई टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्लाइजर। तो आप लोगों को स्लाइजर सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वर्टिकल। वर्टिकल लिस्ट की जगह अगर आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर देते हैं, तब आप लोगों को ड्रॉप डाउन आप लोगों ने कई तरीके से देखा होगा, जो अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह देखी हुई होगी, तो इस टाइप से काफी ज्यादा स्लाइजर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो स्पेस कम यूज करता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे डायरेक्ट वर्टिकल लिस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस को बता रहा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन का यूज करके हम लोग इजिली एक्सेस भी कर सकते हैं और यहाँ से हमारा जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा बचा रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक और विजुअल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का मैसेज रीड भी करूंगा एंड उसका रिप्लाई भी करूंगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो मैं उसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक है या कोई आपको विजुअल्स इसके बारे में समझना है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखना है टेबल। तो टेबल एंड मैट्रिक्स दो ऑप्शन मिलते हैं। टेबल एंड मैट्रिक्स में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि टेबल में हमारे पास सिर्फ कॉलम अकेले देखने के लिए मिलेंगे, एंड मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम दोनों देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो टेबल में आप लोगों को सिर्फ एक कॉलम मिलेगा, या आप एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रख सकते हो। मुझे यहाँ पर दिखाना है लाइक कस्टमर्स, तो यहाँ पे कस्टमर नेम दिखा देता हूँ। कस्टमर नेम के बाद में डेटा पे क्लिक करके कि कंट्री वगैरह बता देता हूँ। कंट्री के बाद मुझे बताना है कि भाई उन्होंने कितना क्वांटिटी परचेज किया है, एंड उसका प्राइस वगैरह अगर आप दिखाना चाहो तो प्राइस दिखा सकते हो। या डायरेक्ट में यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, सेल्स क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे सेल्स 13 क्वांटिटी खरीदी है एंड उसका सेल्स जो टोटल अमाउंट बना है वो कितना बना है 846, मतलब 886 रुपीज।
इस तरीके से आप लोग टेबल दिखा सकते हो। टेबल की फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेटिंग पे जैसे हम लोग जाते हैं, कई सारे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग टेबल पे क्लिक करिए एंड सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो साइज एंड स्टाइल, इसके बारे में बता चुका हूँ तो बार बार नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आप लोगों को सेम वही वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। टाइटल अगर आप दिखाना चाहो तो आप यहाँ पे इजीली टाइटल वगैरह भी दिखा सकते हो। एंड आपको स्टाइल वगैरह यहाँ पे चेंज करना है तो डिफॉल्ट की जगह आप यहाँ पे नन कर सकते हो, मिनिमल कर सकते हो। अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यूज करके देखिएगा एक स्टाइल को। यहाँ पे गाइड लाइन अगर आप लोग ऑफ करना चाहो, ऑन करना चाहो तो यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हो। हल्की हल्की सी लाइन दिख रही होगी आप लोगों को बीच में, एक जूम करके बता देता हूँ थोड़ा। ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, इन सबको आपको हाइड करना है एंड शो करना है। तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है गाइड लाइन, आप लोग यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं शो भी कर सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के मिलेंगे आपको देखने के लिए। बॉर्डर वगैरह लगाना जो ऑप्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सेम वही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज मीन्स जो अंदर डेटा लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो एंड आप चाहो तो इसका साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो। साइज वगैरह बढ़ा देते हैं, हल्का सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो आप लोगों को देखोगे डेटा इस टाइप से क्लियर दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कॉलम हेडर। तो कॉलम का जो भी हेडर वगैरह है उसका आप स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर आपको क्या रखना है, टेक्स्ट का कलर लाइक मुझे यहाँ पर रखना है रेड एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ येलो। तो यहाँ पे इस टाइप से भी आप दिखा सकते हो भाई टेबल्स को अपने। फॉर्मेटिंग करना आपके ऊपर है किस टाइप से फॉर्मेटिंग करना है। टोटल्स के साथ हम लोग यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट में दिख रहा होगा एक टोटल, ठीक है, इसको अगर आप लोग हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो। आप लोग यहाँ से बंद करना है तो आप लोग यहाँ से हटा दीजिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ इसको ऑन रखोगे तो आप लोग यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक कॉलम दिखाना है कि भाई कस्टमर नेम, अब इसका सिर्फ हेडर दिखाना है तो आप लोग इसका हेडर दिखा सकते हो। टोटल इसका दिखाना है तो इजीली इसका टोटल दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट कॉल एलिमेंट आता है आपका, तो यहाँ पे सेल एलिमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा कॉल नहीं करेगा एक्चुअली, तो सेल होता है वो सेल एलिमेंट। ठीक है, सेल एलिमेंट में आप लोगों को सीरीज वगैरह देखने के लिए मिलेगी। आप लोग इसलिए यहाँ से इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, बट इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, रीड थ्रू या लो लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी फिलहाल में तो मैं इस ऑप्शन को हटाता हूँ। सो नेक्स्ट हम लोगों को यूआरएल आइकन वगैरह मिल जाएगा, तो इन सब ऑप्शन को आप लोग एक बार देख सकते हैं एंड इजी ऑप्शन होते हैं आप लोगों को जो फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आप लोगों को सेम फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बट रो एंड कॉलम दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फील्ड में हम लोग जाते हैं तो फील्ड में आप लोगों को सिर्फ टेबल का यूज किया था तो कॉलम अकेला देखने के लिए मिला था। बट मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम आप लोगों को दोनों देखने को मिलेंगी। तो रो में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रो में रखना चाहता हूँ कैटेगरी को, यहाँ पे कैटेगरी की जगह मैं सब कैटेगरी रख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी को मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सब कैटेगरीज के बेस पे दिखाना चाहता हूँ। एंड कॉलम्स में मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो कॉलम्स में आप चाहो तो यहाँ पे मैं ईयर अकेला बताता हूँ, ईयर रख देता हूँ। एंड ईयर आप लोग देख सकते हो 4 ईयर आ चुके हैं। ठीक है, मेरे 2014, 15, 16 एंड 17। इनकी वैल्यूज दिखाना चाहता हूँ मैं। वैल्यूज मतलब जो मेरा सेल्स वगैरह है, किस ईयर में कितना सेल्स हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ से लास्ट में जो वैल्यूज का ऑप्शन मिलता है उसमें आप लोगों को सेल्स को सिलेक्ट करना है। इजिली आप लोग यहाँ से देख सकते हो सेल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, कैसे करना है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को जो स्लाइजर देखना है वो स्लाइजर देखना है हम लोगों को बटन स्लाइजर। ठीक है, तो बटन स्लाइजर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जूम करके बताता हूँ थोड़ा। ये होता है आपका एक बटन स्लाइजर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट स्लाइजर एंड लिस्ट स्लाइजर, इनका भी यूज कर सकते हो, सेम स्लाइजर के जैसे वर्क करेंगे। और बटन स्लाइजर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। तो बटन स्लाइजर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बटन स्लाइजर भी आप लोगों ने कई रिपोर्ट्स में देखे होंगे, कई सारे बटन बने हुए आते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि मुझे फील्ड रखना है तो फील्ड में आप लोग यूज कर सकते हो किस चीज का, कैटेगरी, कंट्री हो गया, सिटीज हो गया। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बटन बना लेना है। तो मैंने सिटी का बटन बनाया है, आप लोग देख सकते हो कई सारी सिटीज है मेरी, उन सबका मैंने क्या कर लिया यहाँ पे बटन बना लिया। ठीक है, तो आप लोग बटन का यूज इस तरीके से कर सकते हो, कई सारे बटन वगैरह बन गए। इस पे आप क्लिक करोगे डेटा उसका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग आप लोग देख लो, क्योंकि फॉर्मेटिंग में थोड़ा यूनिक चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्लाइडर सेटिंग में आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सिलेक्ट और का एक ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ सिलेक्ट और भी कर सकते हैं एक साथ, अगर आप लोगों को एक साथ सभी का दिखाना है। सो और सिलेक्शन मतलब किसी एक पे आप लोग क्लिक करके रख दोगे, सो सिंपल सी बात है किसी एक पर ही क्लिक रहेगा। ठीक है, हटेगा नहीं वहां से, किसी एक ना एक को आपको सिलेक्ट करके रखना ही पड़ेगा। इसलिए इस ऑप्शन को आप लोग ऑफ रखिए। ठीक है, इसका यूज नहीं है इतना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू आ जाता है, लास्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास बटन। तो यहाँ पे बटन पे चलता हूँ, बटन को एक्सपांड करता हूँ एंड एक्सपांड करने के बाद आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बटन से रिलेटेड। स्टेट के बेस पे अगर आप देखना चाहो तो रेस्ट आवर्स यहाँ पे कर सकते हो, बट इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। प्राइजर वगैरह अगर आप लोग सेलेक्ट और सिटीज दोनों में से आप लोग किसी पे भी एक ऑप्शन वगैरह लगा सकते हो, एक्शन थोड़ा बहुत ले सकते हो। एडवांस में आप जाते हो, थोड़ा एडवांस में भी आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। सबको आप रेक्टेंगल वगैरह कर सकते हो या राउंडेड वगैरह कर सकते हो। तो अगर आप लोग पेडिंग वगैरह करना है तो यहाँ से भी आप लोग पेडिंग कर सकते हो, नॉर्मल की जगह आप लोग फिट भी रख सकते हो, नैरो रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, कस्टम रखोगे तो कस्टम भी आ जाएगा, नॉर्मल रखना ही वैसे तो नॉर्मल अच्छा रहेगा। ठीक है, वाइड कर दोगे तो बिल्कुल एकदम वाइड में, मतलब एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कलर वगैरह फिल करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है, अगर कोई बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगाना चाहो तो आप लोग यहाँ से इजली इमेज भी लगा सकते हो, कोई भी अगर इमेज आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे मेरा थंबनेल है, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। अब लोग देखो सब जगह मेरा थंबनेल जो है लग चुका है। ठीक है, मैं स्पीड करना है तो नॉर्मल जगह आप लोग किस पे क्लिक कर सकते हो, फिर टाइप से आप लोगों को थंबनेल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीके से बटन ही बन चुके हैं हमारे। और जिस बटन पे क्लिक करोगे उस बटन का डेटा आप लोगों के लिए इसको हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आप लोगों को सेम मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों को लास्ट जो हमारा विजुअल्स है वो है हमारा न्यू गाइड। न्यू गाइड बेसिकली अभी एक नया नया ऐड हुआ है, अपडेटेड वर्जन है इसका गाइड का। न्यू गाइड में आप लोगों को बड़ा अच्छे से ऑप्शन देखने की, जैसे गाइड में हमने देखा एक वैल्यू शो होती है। न्यू गाइड में आप लोगों को कई तरीके की यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी डेटा के अंदर। मैं यहाँ पे सेल्स रख देता हूँ। एंड गाइड जो आप लोगों को बनाना है, जैसे कि कैटेगरी है तो कैटेगरी में यहाँ पे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखते हो जैसे गाइड में वैल्यू शो होती थी वैसे इसमें वैल्यू शो होती है। बट इसमें आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और भी कैटेगरी देखना चाहो तो आप लोग यहाँ से एक बटन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को छोटा सा, आप लोग सिंपल इस पे क्लिक करिए बार बार, तो आप लोग का जो नीचे भी आप लोगों का जो कैटेगरी वगैरह शो है तो वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। इसका फॉर्मेटिंग नॉर्मल होता है जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंटिन्यू वीडियो आपकी चल रहा है पूरा डेटा एनालिटिक्स का सीरीज हम लोग लेकर आया हूँ। हम लोग पावर बीआई खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ। तो आप लोग कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी आपकी क्वारीज वगैरह हो या कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।